السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قدرتی آفات اور حفاظتی اقدام کے بارے میں جانیں گے۔ قدرتی آفات پاکستان وہ ملک ہے جہاں قدرتی آفات جیسا کہ زلزلے اور سیلاب اکثر واقع ہوتے ہیں۔ کچھ قدرتی ہائی ویز، عمارتیں، بجلی کی لائنیں اور رابطے کے ذرائع متاثر ہوتے ہیں۔ آفات ایسی ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اور اس سے زمین پر موجود چیزیں مثلاً سڑکیں، گھر وغیرہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ قدرتی آفات کے اثرات۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں انسانی زندگیاں بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ لوگ زخمی ہو سکتے ہیں یا پھر آلودہ پانی کی وجہ سے وبائی امراض پھوٹ سکتے ہیں۔ خوراک کی کمی کے مسائل جنم لے سکتے ہیں اور لوگوں کی روزمرہ کی مصروفیات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ کئی دفعہ لوگ اپنے گھروں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور عارضی خیموں میں یا پھر اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سیلاب اور زلزلے کے دوران احتیاطی تدابیر۔ قدرتی آفات میں جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سیلاب میں حفاظتی اقدامات۔ اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے وقت سے پہلے تیاری کرنا ضروری ہے۔ موسمی نشریات کے ذریعے اکثر سیلاب آنے سے پہلے اگر سیلاب آنا ہو تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پہلے ہی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ سیلاب کے دوران اور بعد میں کیے جانے والے حفاظتی اقدامات۔ سب سے پہلا کام اپنے لیے کوئی بلند جگہ تلاش کی جائے۔ سیلاب زدہ لوگوں میں چلنے پھرنے سے گریز کیا جائے تاکہ آپ زخمی نہ ہوں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ پانی کتنا گہرا ہے اور اس کے نیچے کیا ہے۔ یہ آپ کے گرنے یا بہہ جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ یقینی بنائیں کہ پینے کا پانی صاف اور محفوظ ہے۔ پینے کا پانی تیل اور گیس یا گٹر کے پانی سے آلودہ ہو کر آپ کے گھروں کے پانی میں نہ شامل ہو جائے۔ گھروں سے سیلابی پانی کو باہر اسی وقت پھینکیں جب سیلاب رک چکا ہو۔ سیلاب زدہ علاقوں میں کبھی گاڑی نہ چلائیں۔ سیلابی پانی میں آپ کی گاڑی ڈوب سکتی ہے اور اگر آپ پانی میں کھڑے ہیں یا پھر چل رہے ہیں تو بجلی کی تنصیبات کو ہاتھ نہ لگائیے۔ زلزلہ ختم ہو جانے کے بعد کیا کیا جائے؟ زلزلہ ختم ہو جانے کے بعد بہتر یہ ہے کہ تباہ شدہ علاقے سے دور کسی کھلی جگہ میں چلے جائیں۔ اگر آپ خود یا آپ کے آس پاس کوئی اور زخمی ہے تو ابتدائی طبی امداد دیں۔ اگر کوئی شدید زخمی ہے تو فوراً ایمبولینس بلانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی عمارت یا عمارتی ڈھانچے میں پھنس گئے ہیں تو کسی بھی ذریعے سے بچانے والے عملے کی توجہ حاصل کریں۔ یہ آوازیں دینے، دیواروں پر دستک دینے یا موبائل فون کا کام کرتا ہے تو فون کرنے سے ہو سکتا ہے۔ گیس کے اخراج، ٹوٹی ہوئی بجلی کی تاروں سے خبردار رہیں، ان کے فوراً مرمت کرنے کی کوشش کریں یا ریسکیو عملے کو فوراً مدد کے لیے بلائیں۔ زلزلے کے بعد بھی مزید جھٹکوں کے لیے تیار رہیں۔ زلزلہ دوبارہ آنے کی صورت میں حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔ موسم اور آب و ہوا۔ موسم کا مختصر دورانیہ میں حساب لگایا جاتا ہے۔ اگر آج تیز ہوا، دھوپ کے ساتھ خشک موسم ہے تو ہو سکتا ہے کل آنا سے ڈھک جائے اور بارش ہو جائے۔
मौसम की पेशगोई रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है। ये पेशन गोई भी बताती है कि मौसम सर्द है या कल मौसम कैसा होगा। क्लाइमेट आबो हवा एक तवील दौरानिये तक रहने वाला मौसम की सूरत हाल आबो हवा कहलाती है। कम अज़ कम 30 साल के दौरानिये के मौसम की कमान से सूरत हाल का औसत नमूना इस इलाके की आबो हवा बताता है। मिसाल के तौर पर 30 साल के दौरानिये में रिकॉर्ड करदा मालूमात के मुताबिक मौसम सरमा में लाहौर के आबो हवा सर्द और खुश्क होती है, जबकि मौसम गर्मा में शदीद गर्म मौसम होता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे नक्शा क्या है, मतलब कि मैप क्या होता है। पूरी ज़मीन में या ज़मीन के किसी भी हिस्से में रवाजी अलामात वो होती हैं, इसको कन्वेंशनल स्टाइल भी कहते हैं, मतलब कि वो अंदाज़ जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है कि आपको कहीं जाना है, आपको एक पेपर के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर आपको रास्ते बताए गए हैं और उस दुनिया का पूरा वो तो 3D वर्ल्ड है पूरी, और आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है, तो आप उसको एक तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, पेपर के ऊपर लिख लेते हैं। उससे उस पूरे रास्तों को पेपर के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर उतारने को, बनाने को या ज़ाहिर करने को नक्शा कहते हैं। बी बॉर्डर्स यानी कि हुदूद। भी आप कहीं पे भी देखेंगे ना, तो आपको ये ज़हन में, हुदूद का वर्ड है तो आपको ये ज़हन में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये बॉर्डर्स हैं। नक्शे की सरहद मतलब कि उसके बॉर्डर्स पे, उसके कॉर्नर्स पे या किनारों पर जो लाइंस दिखाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हुदूद। मतलब अगर आपको कहीं पे बॉर्डर्स का आपको चेक करना है, तो वो आपको पता चल जाएगा बी से कि ये अच्छा, ये इसका बॉर्डर है। सिमतें, ओरिएंटेशन, ये तीर के निशान पर मुश्तमिल होता है जो शुमाल के जानिब इशारा करता है और मरकज़ी नुक्ते की वजाहत करता है। यानी कि ये आपको डायरेक्शंस देता है, आपको बताता है कि आपने नॉर्थ से किस डायरेक्शन में जाना है और उस पॉइंट की तरफ, उस नुक्ते की तरफ आपको लेकर जाता है। नक्शे की कलीद, मैप की, इसको एल से प्रेजेंट करते हैं। कलीद का मतलब होता है कुंजी। उर्दू में इसका जो आसान मतलब है वो है कुंजी, मतलब मैप की, जो हमें नक्शे पर इस्तेमाल होने वाली अलामात का मतलब बताती हैं। अलामात मतलब के जो निशान होते हैं। आपको आगे मैं बताऊंगी कि मैप, नक्शे के ऊपर, आपको मैप के ऊपर डिफरेंट सिंबल्स होती हैं, डिफरेंट अलामात होती हैं, जिनसे आपको पता चलता है मैप की से कि अच्छा अगर कहीं पे बहुत सारे ग्रीन या छोटे दरख्त बने हुए हैं तो इसका मतलब है इधर बहुत ग्रीनरी है। और ट्रेन स्टेशंस के लिए अलग निशान होते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के निशानात, अलामात मुख्तलिफ होती हैं। उन्वान, उन्वान का मतलब है टाइटल्स। टी से आपको पता चलेगा कि ये नक्शा किस जगह का है और किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है, मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आपके टी टाइटल से आपको पता चल जाएगा, उन्वान से पता चल जाएगा। नक्शे का पैमाना मतलब कि स्केल, वो आपको ये बताता है कि असल इलाके से कितना छोटा है, कि नक्शे के पैमाने का इस्तेमाल करते हुए दिए गए फासलों की पैमाइश करते हैं। इस मालूमात को ज़मीन की सतहों पर उन फासलों का हिसाब लगाने के लिए पैमाना इस्तेमाल करते हैं कि वो जो इलाका है उसका एरिया कितना है या पैमाइश कितनी है। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नक्शे क्या बताते हैं। नक्शों की दर्ज सेल किस्में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। तबाई नक्शा, फिज़िकल मैप, सियासी नक्शा, पॉलिटिकल मैप, मौसम का नक्शा, सड़कों का नक्शा,
सियाहती नक्शा, मुसाहती नक्शा। इन सब नक्शों की अक़साम के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। जी, तो नक्शे क्या बताते हैं? नक्शों में बहुत सारी मुफीद मालूमात होती हैं। इससे हमें बहुत सारी जगहों के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। आज के दौर में नक्शा पढ़ना एक अहम महारत है और इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी अहम और मुफीद सलाहियतों का होना भी बहुत ज़रूरी है। नक्शा पढ़ना और खींचना जुग्राफिया सीखने के लिए बहुत मुफीद है। नक्शे ज़मीन और इसके वसाइल के मुतालिक हमारी मालूमात में इजाफ़ा भी करते हैं। नतीजतन जुग्राफिया का शोबा दुनिया की खसूसियात को समझने के लिए नक्शों की मुख्तलिफ अक़साम पर इन्हिसार करता है। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जान सकेंगे कि नक्शे पर मौजूद कलीद या अलामतें, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मैप की। नक्शे की कलीद, मैप की। नक्शे की कलीद इस बात की वजाहत करती है कि नक्शे पर दर्ज हर अलामत का क्या मतलब है। नक्शे की ज़्यादातर अलामतें रवायती होती हैं और दुनिया के हर खित्ते में समझी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी मैप अगर पाकिस्तान में बना हुआ है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो वो इंसान उस मैप को पढ़ सकता है और जान सकता है और वो पता लगा सकता है कि ये किस चीज़ का और किस जगह का मैप है। मिसाल के तौर पर काले नुक्तों के निशान शहरों को ज़ाहिर करते हैं। आगे हम जब आप वीडियो देखेंगे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नक्शे हैं उसके ऊपर आपको ये अलामतें नज़र आएंगी तो आप ये जान सकेंगे कि जहाँ पर काले नुक्ते हैं इसका मतलब है वो किसी शहर के को ज़ाहिर कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की लकीरें सड़कों, रेलवे की पटरी या हाईवे को ज़ाहिर करती है। दरख्तों के लिए हरा और पहाड़ों के लिए कत्थई रंग इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दरियाओं को नीले रंग से ज़ाहिर किया जाता है। ये अलामतें नक्शे के खुद-व-खाल को समझने में मददगार साबित होती हैं। खुद-व-खाल का मतलब होता है कि आपको अंदाज़ा होता है या आपको पता चलता है कि इस नक्शे के ऊपर पहाड़ कहाँ है, दरख्त कहाँ है और सड़क किधर है, रेलवे की पटरी कहाँ है। तो ये एक पूरा नक्शे का आपके ऊपर जगह ज़ाहिर हो गई कि इस जगह पे क्या-क्या चीज़ें हैं। नक्शे, फिजिकल मैप्स, तबई नक्शा। ये नक्शा किसी मुल्क के तबई खसूसियात फिज़िकल फीचर्स मसलन पहाड़, दरिया, मैदान और सतह मुर्तफ़ा प्लेटूज़ दिखाता है। सियासी नक्शा, पॉलिटिकल मैप। ये रियासतों और मुल्कों की कौमी हुदूद वाज़ेह करता है। इस नक्शे में किसी भी मुल्क के इंतज़ामी और सियासी तक़सीम की वज़ाहत भी की जाती है। मौसम का नक्शा, ये नक्शा किसी इलाके, मुल्क या बर्र-ए-आज़म की आबो-हवा के मुतालिक एक ख़ुसूसी वक्त की मालूमात मुहैया करता है। ये वाज़ेह करता है कि किन इलाकों में बारिश या बर्फ़बारी होती है और किन ख़ास इलाकों के दर्जा हरारत क्या हैं। अमूमन मुख्तलिफ मौसमी सूरत-ए-हाल दिखाने के लिए अलग-अलग अलामतें हैं। सड़कों का नक्शा, सड़कों का नक्शा ये मुख्तलिफ मकामात और जगह ढूंढने के लिए बहुत अहम नक्शे हैं। दुनिया भर में लोग इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। ये सड़कों, शाहराहों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन, बसों के अड्डे और यादगारों की निशानदही भी करते हैं। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन में दिए हुए नक्शों को अपनी मतलूबा जगह तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सियासी नक्शा, ये रियासतों और मुल्कों की कौमी हुदूद वाज़ेह करता है। इस नक्शे में किसी भी मुल्क के इंतज़ामी और सियासी तक़सीम की वज़ाहत भी की जाती है। सियाहती नक्शा,
ایک سیاحتی نقشہ دلچسپ مقامات کو تلاش کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کسی علاقے یا ملک میں آنے والے نئے سیاحوں اور سیر کرنے والوں کو بہت اہم معلومات دیتا ہے۔ ایک سیاحتی نقشہ سڑکیں اور ان پر واقع مقامات، مثلاً عجائب گھر، ہوٹل اور دوسرے سیاحتی شہر، مساجد اور مراکز واضح کرتا ہے۔ شکریہ۔